welcome to all of you. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin team, and I'm sure all of you must be doing really good. A very warm welcome to all of you on this Insta live session that we are going to have today on acne management. So, most of us has gone through that phase of acne vulgaries during our teenage or when we attain puberty. It's so common. Then those who have oily or skin which is acne prone, they also know the hurdles of acne and the post acne inflammatory marks, scars that it leaves. And then in adults also, we see a lot of acne cases these days, especially in women, during their menopause, etc. The most important part is to understand and know how to manage acne. Because what we normally do, I mean, it's a very common tradition in our country to go for home remedies, to go for over-the-counter medication, topical applications, or go for what these influencers these days, because influencers are there, what they are saying these days on various social media platforms, some DIYs, do-it-yourselves that they claim are good quick fixes. But do they really work? Or we need to go to a qualified dermat at the very first phase is going to be our focus today. So today we are going to talk about acne and acne management, and to talk on this very subject we are going to be joined by Dr. Satyajit Sahu, a renowned skin expert from Rourkela. Dr. Satyajit Sahu is a distinguished dermatologist, MBBS and MD in dermatology from Kalinga Institute of Medical Sciences, KIMS Bhubaneswar, where he also pursued an observership in dermatosurgery and medical cosmetology. With a tenure of 3 years as an assistant professor at KIMS, Dr. Sahu has honed his experience in dermatology, his expertise in dermatology. Currently, he is serving as a consultant in the Department of Dermatology at IGH Rourkela. He has contributed significantly to the field with 5 paper publications, including 1 in an international journal and 4 in national journals. Dr. Sahu's professional focus lies in dermatosurgery and medical cosmetology, reflecting his dedication to advancing patient care and dermatological practice. So today we'll have with us on this very live, on this very Insta live. You can also ask your questions if you have any queries, what to do, what kind of hurdles are you facing as a person who's, having acne, or what queries comes to your mind when you think of acne vulgaris. So if you are a teenager or young adolescent and you are facing these problems, or as an adult if you are facing acne, or if you have acne issue because you have oily skin or acne prone skin, then also all your questions are more than welcomed. We'll try to address all of them or most of them. So today our focus will be on how to manage acne. More importantly, it is very, very, very important to understand why over-the-counter medications or over-the-counter topical applications or self-medication is a big no-no when it comes to acne management. Because what happens, we very easily fall for these OTC products because they are easily accessible, available. And once we try using them, we actually fall for it afterwards because initially they work like magic. Most probably maybe because they contain steroids. But then later on we realizes that, it is, our skin is getting addicted to that cream or tube that the chemist have, given us. No offense to any chemist or chemist shops. I mean, we coexist in this world. But then we feel that we are going to save a little bucks, save our time, save our energy of going to a doctor, and consult them. But the fact remains that actually we end up paying more because ultimately these steroids are not good for us. If we keep on using, then of course we will see a lot of side effects. And thus it's important to go to the right person, which is a qualified dermatologist at the right place at the right time. So when is the right time? As soon as you see these acne. Another thing that we'll try to focus on is to how to take care of your skin. What skincare regimen or routine to follow, which we can be more consistent about so that, our skin is more healthy, more
immune to acne? And in case we have acne, then how to manage it? What are the treatment options? How to diagnose also? Because we often get to listen a lot about that. It's important to know the root cause, why it's happening to you. You have heard about, people saying that whenever I eat chocolate or whenever I eat, more of dairy products, I get acne. Then people, especially during this, transition period of weather, where it was summers and now it's monsoon, raining in most part of our country. And then we realized that probably it's due to the weather that we are getting these zits on our faces. So then there are people who get these small, fine acne or red bumps on their foreheads because they have hair-related issues, they have dandruff issues, or they have fungal issues, etc. If your hormone is continuously changing or is not balanced, mostly happens with women, especially after a certain amount of age, that's when the adult acne comes into place. So there's so much to ask about, and also about what kind of products to go for and what to avoid. Also in terms of eating, as a dietary precaution, what to have, what not to have. So these are the questions that we'll try to address. And we are going to be joined shortly by our guest of today's conversation, our expert, our skin expert, Dr. Satyajit Sahu, who's joining from Rourkela, Odisha. And of course, the whole conversation will, surround acne and acne management. Now, those who had gone through this phase of acne, they'll understand that treating acne is one thing because acne eventually will go away. But then treating the post-acne scars or marks also may go by, but then the scars. Skin expert, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सत्यजीत साहू हमारे इस सेशन में. Thank you, madam, for your kind introduction. डॉक्टर साहू, आज हम बात करने वाले हैं एक्ने मैनेजमेंट पे. और एक्ने एक ऐसी चीज है, हम सब जानते हैं, क्रॉनिक स्किन कंडीशन है और एक ऐसी चीज है जिससे मोस्टली सभी जो है कभी ना कभी उनका उससे सामना हुआ है और बहुत परेशान हमें ये एक्ने करता है, चाहे एक टीनेजर के तौर पे हो, एक यंग एडोलेसेंट के तौर पे हो, या फिर एडल्ट्स में भी कई बार हम देखते हैं, खासकर महिलाओं में एक सर्टेन एज के बाद फिर से एक्ने आने लगते हैं, या फिर जिनकी ऑयली स्किन होती है, एक्ने प्रोन स्किन होती है, वो बहुत परेशान होते हैं. और ये जो वेदर है खास तौर पे, जब गर्मियां थी, अब एकदम से बारिश शुरू हो गई है ज्यादातर पार्ट्स ऑफ इंडिया में, लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि कई बार हमें ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, ये एक्ने है क्या, होता क्यों है? एक्ने इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है हमारा पाइलोसिबोसिस यूनिट पे. पाइलोसिबोसिस यूनिट ये है कि जहाँ हमारा ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड है ना, उसी का ही एक बेसिकली एक डिजीज है. लोग सोचते हैं ये नॉर्मल है, ये होगा, ये चला जाएगा, इसीलिए ट्रीटमेंट बहुत लोग नहीं करते इंडिया में खास करके. तो ऐसा नहीं है, ये एक डिजीज है, एक हमारा ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड है. बिल्कुल. तो ये एक डिजीज है और उतनी गंभीरता से इसे लेना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए. लेकिन डॉक्टर साहब, आप भी अग्री करेंगे मेरी इस बात से कि हमारे देश में ना, हमारी सोसाइटी में ये एक ट्रेडिशन है, हमको होम रेमेडीज, दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे बहुत पसंद है. फिर केमिस्ट शॉप्स इतने इजीली एक्सेसिबल है, सबके पास में होते हैं और ओवर द काउंटर मेडिसिन मिल भी जाती है हमारी सोसाइटी में. तो बहुत आसान तरीका ये होता है, एक्ने हुआ, अरे कुछ लगा लो. तो स्टार्टिंग फ्रॉम मुल्तानी मिट्टी, बेसन, दही, और एक्ने पे तो हम न जाने क्या क्या लगा लेते हैं. टूथपेस्ट कंपनीज को भी नहीं पता होगा कि उनका जो टूथपेस्ट है वो पिंपल्स पर लगाया जाता है, लेकिन वो बहुत रैपिडली लगता है. फिर हम किसी भी केमिस्ट शॉप पे चले जाते हैं अगर होम रेमेडीज वर्क नहीं करते, और जो वहां से हमको ट्यूब मिलती है वो इतना इनिशियली वर्क करता है, हमको लगता है हमारे हाथ में कोई मैजिक ट्यूब लग गई है, क्योंकि हमारे देखो एक्ने सब कम होने लगे हैं. बाद में हमें समझ में आता है, क्योंकि हम बहुत लंबे अरसे तक उसे यूज करते रहते हैं, कि हमारी स्किन ही उसकी एडिक्ट हो गई है. तो ये जो दोनों चीजें हैं, होम रेमेडीज हुई या ओवर द काउंटर जो टॉपिकल एप्लीकेशन होता है, जो ट्यूब मिलती है, ये काम करते हैं या ये नुकसानदायक भी हो सकते हैं हमारे एक्ने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, होम रेमेडीज के बारे में अगर मैं बताऊं, कुछ चीज जैसे दही वगैरह, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, ये थोड़ा ऐसा काम कर सकता है. बट ये ओवर द काउंटर जो मिलते हैं, जो लोग जाके दवाई दुकान से डायरेक्ट खरीदते हैं, वो सबसे हानिकारक होते हैं.
उसमें बहुत हाई पोटेंट स्टीरॉयड मिला होता है जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है इनिशियली। लोग भी बहुत खुश होते हैं कि 150 रुपया में क्यों डॉक्टर को 500 देने का, फिर 1000 का मेडिसिन लेना, तो 150 रुपया में वो बढ़िया रिजल्ट। बट ये टेम्पोररीली है, इनिशियली रिजल्ट होगा, स्किन भी लाइट होगा, सारा होगा, बट बाद में चल के ये इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है जो लाइफ लॉन्ग रहता है। वो लोगों को लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद ही वो साइड इफेक्ट आते हैं। वो तो मैं तो हमेशा डिनाई ही करूंगा कि कभी ये ओवर द काउंटर मेडिकेशन ना ले। और कुछ होम रेमेडीज ठीक है, लोग होम रेमेडी तो पेस्ट भी लगा रहे हैं। हमारे पास कुछ कुछ केसेस है जो कोलगेट टूथपेस्ट ऐसा लगा के आ रहे हैं, काला हो जा रहा है, परमानेंट डैमेज हो रहा है, और बहुत सारा केमिकल इधर उधर के घर में लगा के डैमेज हो रहा है। बट दही, मुल्तानी मिट्टी, अब ठीक है, चलेगा, मतलब वो चलेगा टाइप चल रहा है, हम्म। उसमें खराब भी और नहीं, अगर इफेक्ट आप नहीं कर रहा था, हाँ, खराब भी नहीं कर रहा। हाँ। बिल्कुल। तो जब तक चीजें काम कर रही हैं, इफेक्टिव लग रही हैं होम रेमेडीज में, तब तक तो ठीक है। लेकिन जब हमें लगने लगे कि नहीं, इससे भी नहीं काम हो रहा है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है, तब जरूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ओवर द काउंटर टॉपिकल एप्लीकेशन बिग नो नो, जैसे कि डॉक्टर साहू बता रहे हैं। डॉक्टर, आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। और स्किन रिलेटेड इश्यूज जो है उनका फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल। और वो बहुत सारी कई बार प्रोडक्ट्स भी एंडोर्स करते हैं, और हम लोग देख भी रहे हैं कि आजकल मार्केट में ढेर है प्रोडक्ट्स का। और कई बार क्या होता है, हमने इस महीने 10 क्रीम्स खरीद ली स्किन के रूटीन के नाम पे, फिर अगले महीने कुछ नया आया, उन्होंने कहा कि आपके स्किन के हिसाब से कस्टमाइज बिल्कुल हम आपको देंगे, फिर हम वहां चले गए। तो हम बहुत रैपिडली चीजें चेंज भी कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो है चेंज भी कर रहे हैं। फिर अलग अलग ट्रेंड है, कोरियन स्किन का ट्रेंड है, या तरह तरह की चीजें चलती हैं। और हम सब क्योंकि हमको लगता है स्किन से हम बहुत ऑब्सेस्ड हैं, तो हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस पर करने लगते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या स्किन केयर, क्योंकि ये जो जितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ये स्किन केयर के नाम पे बिक रहे हैं, तो क्या स्किन केयर को इतना लेंदी करना जरूरी है कि 10 प्रोडक्ट्स होने जरूरी है? मिनिमम एक मिनिमलिस्टिक बेसिक स्किन केयर रूटीन क्या हो सकता है जो हम सब करें वो और रेगुलरली करें? वो जो आजकल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में चल रहा है, वो बेसिकली मार्केटिंग का एक पॉलिसी है। बस वो बेच रहे हैं, वो एक बिजनेस चल रहा है। 10 प्रोडक्ट नहीं, एक दो प्रोडक्ट, वो भी प्रॉपर प्रोडक्ट होना चाहिए एक्नी के लिए। तो वो भी वो लोग उसमें, हमारा मैक्सिमम हमने देखा है कि उसमें एक भी उनका प्रॉपरली प्रोडक्ट भी नहीं होता। वो बस फैंसी आइटम दिखाते हैं, ऐड रहता है, लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग लगाते हैं, लॉन्ग टर्म में उससे भी प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को ठीक नहीं हो रहा है, एग्रेवेट हो जाता है एक्नी, ये सब प्रॉब्लम ऐसा है। बिल्कुल। तो मतलब बेसिक स्किन प्रॉपर केयर रूटीन क्या हो सकता है? बेसिक, अगर एक एक्नी के लिए, एक एक्नी का पेशेंट का आप बताओगे तो उसके लिए, एक्नी प्रोन स्किन के लिए उसका स्पेसिफिक मॉइस्चराइजर, फिर एक्नी के लिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है वो बेसिक होता है, और साथ में एक सनस्क्रीन। ये तीन चीज हम बेसिक में देते हैं। और फिर डिपेंड करता है एक्नी का ग्रेड के ऊपर कि हम उनको कुछ खाने के लिए दवाई दे रहे हैं या सिर्फ लगाने के लिए दे रहे हम्म। हैं, और रेगुलरली। डॉक्टर साहू, जी अभी आपने जिक्र किया एक्ने के ग्रेड का, तो आपसे ग्रेड भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई बार इनिशियली जो हम जैसे लेमन के तौर पे कहते हैं ना, व्हाइट हेड है, ब्लैक हेड है, वो होता है। फिर कभी कभी तो वो इतने बड़े हो जाते हैं, उसमें पस भर जाता है और बहुत पेनफुल भी होता है। तो क्या अलग अलग ग्रेड्स हैं एक्ने के? बेसिकली अभी 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4। तो अकॉर्डिंगली माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर है। तो आप वो जो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड हुआ, वो ग्रेड 1 में आता है, और उससे ज्यादा फिर पस हुआ तो अकॉर्डिंगली ग्रेड बढ़ता है। और बड़े बड़े नोड्यूल होते हैं, नोड्यूल मीन्स बड़े बड़े स्किन के अंदर गांठ जैसे बन जाते हैं, वो ग्रेड 4 में आते हैं। तो ये ग्रेडिंग मेनली इसलिए डिवाइड किया गया कि हमारा ट्रीटमेंट का मॉडलिटी चेंज होता है ग्रेडिंग के हिसाब से। हम किस में खाने दे रहे, किस में लगाने दे रहे, किस में बोथ दे रहे, ये अकॉर्डिंग ग्रेडिंग के हिसाब से दिया जाए। ये मेनली ग्रेड जी जी। डॉक्टर, कई बार होता है, खासकर वो जो जिनकी बहुत ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, उनको लगता है कि हमारा चेहरा शायद साफ नहीं है, गंदा हो रहा है, इसलिए एक्ने हो रहा है। या फिर उनको लगता है कि ये जो बहुत सारा ऑयल निकल रहा है, जो सीबम प्रोडक्शन हो रहा है स्किन पे, इसकी वजह से एक्ने हो रहा है।
तो वो बहुत बार अपने चेहरे को धोते हैं, जब जब उन्हें मौका मिलता है वो अपने चेहरे को धोते हैं, कभी क्लिनजर से, फेस वॉश से। एक और हमारा ऑब्सेशन है कि ढेर सारा झाग होना चाहिए तो अच्छे से बिल्कुल हमारी स्किन जो है क्लीन होगी। तो किस तरह का क्लिनजर इस्तेमाल करना चाहिए खासतौर पे अगर ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है, और कितनी बार फेस साफ करना ठीक है? रिपीटेडली फेस वॉश तो नहीं करना है, ये तो बिल्कुल मना है। बार बार फेस वॉश करने से क्या होता है, हमारा एक मॉइस्चराइजिंग फैक्टर होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से और ड्राई होता है, ड्राई से बैरियर फंक्शन लॉस होगा, उससे और भी एक्नी होने का चांस होता है। ये बेसिक मैकेनिज्म कि बार बार फेस वॉश नहीं करना। और एक क्लींजर कोई भी यूज करना है तो हम बहुत ज्यादा झाग वाला तो हम वो भी मना करते हैं लगाने। हमारे पास माइल्ड क्लींजर अवेलेबल है मार्केट में, वो प्रॉपरली उसका फेस को देख के हम अकॉर्डिंगली देते हैं कौन सा क्लींजर यूज करना है, जिसमें बहुत कम झाग हो, उसी टाइप का क्लींजर दिया जाता है। और बेसिकली 2 बार फेस वॉश करना ही सफिशियंट है, 1 से 2 बार दिन में, 24 आवर। बिल्कुल। तो 1 से 2 बार फेस क्लीन करना, फेस वॉश करना सफिशिएंट है। जो क्लेंजर है वो माइल्ड होना चाहिए, और अगर आपकी स्किन में कोई इशू है तो बेहतर है कि आप अपने डर्मैट से कंसल्ट कर लीजिए। आपके स्किन टाइप के हिसाब से, आपका जो भी इशू है, स्किन इशू, उसके हिसाब से एक बेहतरीन उपाय वो आपको बताएंगे, जो अच्छा एक क्लेंजर है वो आपको सजेस्ट करेंगे जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, मॉइस्चराइजर भी हम सुनते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्किन का एक बैरियर वो क्रिएट करता है। लेकिन जो एक्ने प्रोन स्किन जिनकी होती है या ऑयली स्किन जिनकी होती है वो आमतौर पे कहते हैं, और ये मॉइस्चराइजर तो यूज ही नहीं करते। उनका कहना है कि ऑलरेडी तो इतना ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, उस पे हम और मॉइस्चराइजर कैसे लगाएं? तो क्या मॉइस्चराइजर उनको भी लगाना जरूरी है, और अगर हाँ तो किस तरह का मॉइस्चराइजर वो चुने, किस क्या चीजें देखें अपने मॉइस्चराइजर? मॉइस्चराइजर हर स्किन के लिए चाहिए, वो एक्नी प्रोन हो या नॉन एक्नी प्रोन। बट ऐसा है कि हम स्किन के टाइप देख के मॉइस्चराइजर सिलेक्ट करते हैं। ज्यादा ऑयली स्किन है तो एक माइल्ड मॉइस्चराइजर आता है, एक्नी जिनको या पिंपल्स का जिनको प्रॉब्लम है तो उनके लिए नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर है, वो भी डॉक्टर देख के डिसाइड करते हैं कि कौन सा देना है। नॉन कॉमेडोजेनिक में भी 2-3 वेराइटी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसमें पूरा माइल्ड दिया जाता है। और बाकी नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, पर नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर इंपॉर्टेंट होता है एक्नी प्रोन स्किन के लिए। बिल्कुल। ऐसे ही सनस्क्रीन, आपने कहा सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फैक्ट यही है कि अभी भी हमें लगता है कि सनस्क्रीन तभी लगाना है जब धूप में जा रहे हैं। तो अगर हम घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या जिस तरह का अभी मौसम हो रहा है, बहुत ही बादल है, बारिश हो रही है, तो इसमें सनस्क्रीन की क्या जरूरत है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सनस्क्रीन हम हमारे एक्नी में और तो जो हम लगाने ही देते हैं, बट नॉर्मली भी लोग लगा रहे हैं। लोग का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है कि बाहर जाने से लगाना है, वो लगाते हैं जस्ट इमीडिएट जाने से पहले बाहर। ये कॉन्सेप्ट पूरा तरह रॉन्ग है। हम यूजुअली स्किन को प्रिवेंट करते हैं नैरो बैंड यूवीबी, एक यूवीबी रे होता है, उससे हम प्रिवेंट करते हैं स्किन डैमेज। वो रे ऐसा है, घर के अंदर भी आता है, आप अगर पर्दा लगा रहे हो तब भी वो आता है, आपका पतला कांच है खिड़की में तब भी वो घर के अंदर आता है। जो हम बाहर रे देखते हैं वो विजिबल रे होता है, घर के अंदर यूवी रे आते हैं। तो बस इसीलिए हमें जरूरी है कि घर के अंदर रहते वक्त भी प्रॉपरली और प्रॉपर टाइम से और प्रॉपर अमाउंट में सनस्क्रीन लगाएं। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लगा लिए, लोग लगाते हैं क्योंकि महंगा आता है। इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि नहीं थोड़ा थोड़ा लगा लो, वो भी नहीं, वो भी गलत है। प्रॉपर उसका अमाउंट है दिन में लोग बोलते हैं कि हम 1 बजे दिन में लगा रहे हैं, वो भी गलत है। प्रॉपर टाइम, प्रॉपर अमाउंट, और घर में रहो चाहे बाहर। बाहर अब एक्सपोज जब पूरे डायरेक्टली सनलाइट में होते हैं तो हम उसका एप्लीकेशन का जो होता है दिन जैसे यूजुअली 2 बार बोलते हैं, उसमें हम 3 बार भी बोलते लगाने का गैप को बढ़ा दें। तो जिस तरह जैसे आपने कहा कि सनस्क्रीन एक तो आप घर के अंदर हैं या बाहर हैं ये मैटर नहीं करता, लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप बाहर हैं तो रीएप्लीकेशन ज्यादा होना चाहिए। या फिर कितना हम लगा रहे हैं, कितना अमाउंट लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं, कितनी देर पहले लगा रहे हैं बाहर निकलने से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम चाहेंगे आप थोड़ा बताएं डॉक्टर, कितना अमाउंट लगाना है घर से बाहर निकलने की, कितनी देर पहले लगाना है, और रीएप्लीकेशन क्यों जरूरी है, कब कब रीअप्लाई करना है? अमाउंट का बात किया जाए तो 1 फिंगर टिप यूनिट फेस और नेक के लिए होता है। 1 फिंगर टिप यूनिट मतलब ये जो लाइन है, हमारा लास्ट लाइन है, उससे ये टिप तक, उतना उतना वो अमाउंट हमारे इम्पोर्टेंट था फेस और नेक के लिए। और अगर घर से जा ऐसा तो हम लगाने का टाइमिंग 9 AM और 1 PM देते हैं, लेकिन बेस्ट
होता है 8:30 से 9 के बीच में, फिर 11:30 के बीच में, फिर 2 to 2:30 के बीच में, अगर कोई दिन भर बाहर। और अगर लोग तभी बोलते हैं कि हम जाने से पहले लगाएंगे, तो इमीडिएटली नहीं लगाना है, क्योंकि काम करने में थोड़ा टाइम लगता है सनस्क्रीन को। तो एटलीस्ट 20 minutes to 30 minutes बिफोर एक्सपोजर टू सन लगाना है। जी, और वो बिल्कुल। तो क्या होता है हमारा रीएप्लीकेशन, सनस्क्रीन, जी, वो यूवी रे जब रीएप्लीकेशन लगती क्यों है तो, जरूरी है डॉक्टर? क्योंकि यूवी रे जब हमारे सनस्क्रीन के कांटेक्ट में आता है, तो सनस्क्रीन के जो इंग्रेडिएंट होता है जो सन से प्रोटेक्शन देते हैं, वो डिग्रेड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार दिन में लगाएं तो वो 8 घंटा या 24 घंटा के बाद भी काम करे, ऐसा नहीं है। वो डिग्रेड होते हैं, इसीलिए फिर से हम री एप्लीकेशन करें। बिल्कुल। तो इसलिए सनस्क्रीन लगाना, जो हम अमाउंट लगा रहे हैं, रीएप्लीकेशन, ये सब बहुत जरूरी है। और डॉक्टर, एक और बहुत आम सवाल सनस्क्रीन को लेकर, क्योंकि अभी भी हमारी कंट्री में 69-70% पॉपुलेशन रेगुलरली सनस्क्रीन यूज नहीं कर रही है, और तमाम तरह के कंप्लेन्ट्स और एक्सक्यूजेस वो देते हैं, खास तौर पे क्योंकि हम यहाँ पे एक्ने मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो जिनको पिंपल्स है वो बहुत ये बोलते हैं कि कई बार हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा चेहरे पे पसीना आ रहा है, या हमारी स्किन बहुत डल हो गई है, बहुत पैची लुक आता है, या फिर पिंपल ऑलरेडी है, उसको हम कैसे लेयर अप कर दे सनस्क्रीन से। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आती है। सनस्क्रीन जब लेने जाए, खास तौर पे एक्ने मैनेजमेंट के हिसाब से मैं पूछ रही हूँ, जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है या ऑयली स्किन है, क्या चीजें वो देखे अपनी सनस्क्रीन में जो होना चाहिए? पहला तो नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन होना चाहिए। बहुत लाइट वेट सनस्क्रीन सब अवेलेबल है अभी मार्केट में, ये सब लगाते हैं। और इम्पोर्टेंट है नॉन कॉमेडोजेनिक, जो भी अच्छी ब्रांड की जो भी है सनस्क्रीन, वो मेंशन करते हैं कॉमेडोजेनिक या नॉन कॉमेडोजेनिक, वो important। तो नॉन बिल्कुल। कॉमेडोजेनिक हम प्रेफर करते हैं। जी। तो नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन होना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब एक पेशेंट डॉक्टर आपके पास आता है, पिंपल हो रहे हैं उनको या एक्ने हो रहे हैं, तो क्या कोई टेस्ट आप सजेस्ट करते हैं ये पता करने के लिए कि रूट कॉज क्या है, या क्या कौन सा ग्रेड का एक्ने है, या जस्ट बाय क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ही आप श्योर हो जाते हैं कि क्यों हो रहा है और क्या ग्रेड है? तो ये डिपेंड करता है कौन सा ग्रेड है, कौन सा एज में पेशेंट आ रहा है, और उसका एसोसिएटेड सिम्टम क्या है। मतलब अगर एक पेशेंट, यूजुअली एक्नी 25 ईयर से पहले ही हमारा, मतलब अगर आता है तो खत्म हो जाता है। अगर 25 ईयर के बाद परसिस्ट कर रहा है, या 25 ईयर के बाद नया आ रहा है, यूजुअली वुमेन फीमेल्स में आता है, तो हमको सस्पेक्ट रहता है कि कुछ हार्मोनल डीअरेंजमेंट, या एक पुबर्टी आने से पहले, मतलब 12 या 14 साल के पहले ही एक्नी आ रहा है, कोई 8 साल के बच्चे को, 10 साल का बच्चा हुआ उसको आ रहा है, तो उसमें हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। क्योंकि ये एक्नी ना कि सिर्फ स्किन डिजीज है, ये अंदर का भी हार्मोनल डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होता है। ये इन्वेस्टिगेशन बेसिक, और यूजुअली जो माइल्ड ग्रेड में जो मिडिल एज में आते हैं, 14, 15, 16, 17, ये पे हम उसको क्लिनिकली देख के ही ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होता है। सीवियर ग्रेड में, या और एक्नी का कुछ कुछ वेराइटी है, या उसके साथ एसोसिएटेड कोई चीज है, लाइक आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है दूसरे जगह, नेक के पीछे, या अंडर आर्म्स में एक्नी जैसा लीजन हो रहा है, उसमें हम कुछ कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। यूजुअली ब्लड टेस्ट होता है। और कॉमन एसोसिएटेड डिसऑर्डर है वुमेन्स में, पीसीओएस करके एक होता है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, वो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। तो उसके लिए बेसिक एक ब्लड टेस्ट होता है, और अल्ट्रासाउंड करा के हम डायग्नोस करते हैं पीसीओएस है। अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हमारा मैनेजमेंट चेंज भी होता है उसमें, टेक्निक के लिए तो देते हैं, और कुछ कुछ ड्रग ऐड भी करते हैं, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी उसमें इम्पोर्टेंट होता है। ओके। और डॉक्टर, फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं एक्ने के लिए? एक्नी का, जैसा मैंने बोला, ग्रेड के हिसाब से ट्रीटमेंट है। ग्रेड 1 में जो हमारा लोग बोलते हैं वो ब्लैक हेड है या क्लोज हेड, व्हाइट हेड है, उसके लिए सिर्फ टॉपिकल ही ट्रीटमेंट हम सिर्फ लगाने पे क्रीम देते हैं। और बेसिक मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन तो वो कॉमन है सारा में। उसके साथ अगर ग्रेड ज़्यादा आ रही है तो उसके साथ कुछ हम एंटीबायोटिक खाने देते हैं, या दवाइयाँ भी लॉन्ग टर्म के लिए, अगर ग्रेड ज़्यादा है तो खाने खाने देते हैं। और अगर हमारा उसके साथ एसोसिएटेड हार्मोनल डिसऑर्डर है, पीसीओएस लेके है, तो हार्मोनल मैनेजमेंट भी हम किया जाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसका जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं,
लोग क्या करते हैं इनिशियली, ऐसा नहीं कि वो जो बाहर ओवर द काउंटर ड्रग लेते हैं वो इमीडिएट रिजल्ट देता है। हमारा थोड़ा टाइम लगता है। हम्म, लोग 1 मंथ तो मिनिमम टाइम है कोई भी मैनेजमेंट को, कोई भी मैनेजमेंट कर रहे हैं ठीक होने। और उसके बाद भी कि हम यूजुअली क्लिनिकली देखते हैं लोग 2-3 महीना में ठीक हो गए, 4 महीना में फिर वो बंद कर देते हैं दवाई। वो बहुत बड़ा हम्म, प्रॉब्लम है। एक्चुअली एक्नी का ट्रीटमेंट कम से कम 1 साल से 1.5 साल ऐसे चलता है, तो बेसिक है। अगर ग्रेड ज्यादा है और वो दवाई खा रहे हैं, अगर लोग नई दवाई भी खाना चाहते हैं तो वो आगे डॉक्टर को कंसल्ट भी करना चाहिए कि डॉक्टर मुझे दवाई और नहीं खाऊंगी, एटलीस्ट हम लगाने के लिए मेंटेनेंस थेरेपी में देते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट है। मेंटेनेंस थेरेपी के लिए एक टॉपिकल क्रीम लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसा शुरू में भी डॉक्टर साहब ने कहा था कि एक्ने एक डिजीज है, उसे उस गंभीरता के साथ लेना जरूरी है, और ये बहुत जरूरी है। जैसा शुरू से हम कह रहे हैं कि अगर एक्ने है तो सबसे पहले क्वालिफाइड डर्मेट को दिखाइए, और जो ट्रीटमेंट है उसे पूरा कीजिए, जैसा डॉक्टर कह रहे हैं उसे फॉलो कीजिए। सेल्फ मेडिकेट नहीं की 1 महीने लिया और हमें लग रहा है अच्छा अब तो एक्ने ठीक हो गए, हमने बंद कर दिया, फिर 3 महीने बाद एक्ने होने लगे तो हम वही प्रिस्क्रिप्शन लेकर गए। ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर को लूप में रखकर डॉक्टर से सलाह मशवरा करना बहुत जरूरी है। और हमारी सोसाइटी में तो बहुत इजी है, इजीली अपॉइंटमेंट्स मिल जाते हैं, और आजकल ऑनलाइन भी हम डॉक्टर से बात कर पाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहें और उसे उस गंभीरता से लें। डॉक्टर, एक्ने ट्रीटमेंट तो एक बात है, मतलब जो जिनको एक्ने बहुत होते हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि एक्ने तो इवेंचुअली चले भी जाते हैं, लेकिन उनके जो स्कार्स रह जाते हैं, जो मार्क्स रह जाते हैं, वो लगता है कि वो कभी नहीं जाएंगे। तो पहले तो क्या करें कि वो हो ही ना, और अगर हो गए हैं तो क्या इलाज संभव है? होना ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनिशियल डेज में करा लेना, ट्रीटमेंट कराने से वो नहीं होगा। जब लोग का वो एक्नी का ग्रेड 1 में रहता है या थोड़ा भी एक्नी आ रहा है, प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के सजेशन लेके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, ताकि ना हो। क्योंकि एक बार स्कार हो गया, वंस स्कार में तो ऑलवेज स्कार, मतलब वो रहेगा, उसको थोड़ा हटाना मुश्किल होता है। आजकल बहुत सारे लेजर और बहुत सारे मॉडलिटी, एडवांस मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट आ गए हैं, जिससे हम एक्नी स्कार और जो दाग भी रह जाते हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई भी ट्रीटमेंट 100% स्कार को ट्रीट नहीं कर सकते, ये सबको जानना है। ऐसा नहीं कि हमको आज ठीक है एक्नी और हम छोड़ दिए, कल को स्कार हो गया उसको भी ठीक कर लेंगे, नहीं। 100% नहीं, अप टू 70-80% हम रिजल्ट दे सकते हैं उसमें। तो बेटर है, बेस्ट होता है कि आप बिल्कुल। इनिशियली ही ट्रीट में, इनिशियल पीरियड में ही एक्नी को ही ठीक करें, ताकि ना स्कार हो ना उसको ट्रीटमेंट कराना। और ये सब ट्रीटमेंट काफी कॉस्टली भी होती है। आप छोटा सा एक्नी बस छोटा ही में ट्रीट कर सकते हैं, और स्कार मैनेज करना लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट 1-2 साल 3 साल चलता है और महंगा भी होता है। बिल्कुल। एक तो 100% ठीक हो जाएंगे स्कार्स, ये बोल पाना संभव नहीं है। दूसरा, थोड़ा महंगा भी होता है, और सबसे आसान तरीका है कि एक्ने को ही सबसे पहले ट्रीट कर लो। तो जितना छोटा एक्ने, आप डॉक्टर के पास जाएंगे आसानी से ट्रीट होगा, आपके पैसे बचेंगे, एनर्जी बचेगा, टाइम बचेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी स्किन बचेगी, क्योंकि एक बार अगर स्कार्स हो गए तो फिर उन्हें ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन भी देख रही थी हमारे व्यूअर का, इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन था कि क्या हम एक्ने को पॉप कर सकते हैं? कई लोग होते हैं जो एक्ने को उनको लगता है हम खुद से ही स्क्वीज करके उसका पस निकाल दे, तो वो करना ठीक ये है? बिल्कुल मना होता है। ये वो अगर करेंगे तो इससे ज्यादा दाग होने का चांस होता है। वो तो इमीडिएट रिलीज मिलता है, इसीलिए लोग करते हैं कि बड़ा सा है बम्प निकला हुआ, हाँ, उसको टिप दिए, हाँ, निकाल दिए, 2 दिन में ठीक हो गया। बट वो आगे चल के स्कार रहने का चांस होता है और दाग ज्यादा रहने के चांस होता है। बिल्कुल। तो तो पॉप वो नहीं करना है, स्क्वीज नहीं करना है, हाथों को दूर रखना है एक्ने से। जी। डॉक्टर, ये जो मौसम चल रहा है, शुरू में भी हमने बात की, इस मौसम में भी और खास तौर पे ये जो ट्रांजिशन हुआ है, गर्मी से एकदम से मानसून आ गया है, बारिश होने लग गई है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, बहुत लोगों में ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे भी इसे मतलब इस टाइम पे तो संक्रमण वाले रोग होते ही हैं, एक्ने भी बहुत बढ़ जाता है। तो इस मौसम में क्या ध्यान रखना चाहिए? क्यों एक्ने होते हैं? क्या करें? मौसम यूजुअली अभी जैसे थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ता है इस वक्त, क्योंकि जस्ट गर्मी से ऐसा बारिश हो रहा है। ह्यूमिडिटी के कारण ज्यादा स्वेटिंग, और उसके लिए वो है कि एक्नी को थोड़ा एग्रवेट करता है। तो बहुत ज्यादा प्रिवेंट, तो अगर आपको एक्नी है तो आप वो ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो ज्यादा ब्रेकआउट ब्रेकआउट नहीं होगा इस टाइम। वो इम्पोर्टेंट है, आप कंटिन्यू ट्रीटमेंट में रहें। और जितना माइल्ड मॉइस्चराइजर, माइल्ड क्लिंजर अभी यूज करना है।
और स्किन को इधर उधर से कुछ दूसरा मेडिकेशन या स्किन को ना छेड़े, ये इम्पोर्टेंट। मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन प्रॉपरली यूज करें। बिल्कुल, तो मॉइस्चराइजर प्रॉपर्ली यूज करना बहुत जरूरी है, क्लेंजर यूज करना बहुत जरूरी है, सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि शुरुआत में डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा क्लीन नहीं करना है, क्योंकि इस मौसम में भी क्योंकि ऑयल सिक्रेशन बढ़ जाता है, हमें लगता है बार बार चेहरा धोते रहे, ये भी नहीं करना है, 1 से 2 बार सफिशिएंट है। और हाँ, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है स्किन पर तो प्लीज उसे लाइटली लेने, डॉक्टर के पास जाए, ये जरूरी है। बहुत सारे सवाल हमारे व्यूअर्स के आ रहे हैं। एक सवाल है वो है कि क्या एक्ने हेरिडिटरी होता है? कोई फैमिली हिस्ट्री का कनेक्शन डॉक्टर एक्ने के साथ? हाँ है, एक्ने का हेरिडिटरी एसोसिएशन, वो मेनली फेस और ट्रंक में होता है, अपर चेस्ट और बैक में, फेस में हेरिडिटरी है। हाँ। क्योंकि आपने लोकेशन का जिक्र किया डॉक्टर, एक और चीज बहुत आम देखने में आती है, कई लोगों को फोरहेड पे छोटे छोटे दाने होते हैं, एक्ने होते हैं। कई लोगों को बटरफ्लाई एरियाज में ही हमेशा एक्ने होते हैं, चीक्स पे, नोज पे, या कई हैं जिनको ये जो जॉ लाइन है यहीं पे एक्ने होते हैं, या नेक में एक्ने होते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, पर्टिकुलर लोकेशन है, क्या ये कुछ बताता है? हाँ, ये हमारा जो लोकेशन है एक्ने का, ये सजेस्ट करता है एक्ने का एसोसिएशन के साथ। जैसे कि आप लोग बोले जॉ लाइन इधर है, लोअर फेस में है, मिड से लोअर फेस में अगर एक्ने होता है तो ये यूजुअली हार्मोनल डिसऑर्डर में होते हैं। आपके पीसीओएस कॉमन डिसऑर्डर है, या एड्रेनल ग्लैंड से ज्यादा हमारा एक टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन हो रहा है। वो छोटा ट्यूमर भी हो सकता है, बहुत रेयर है, बट उसमें भी ऐसा हो सकता है। और रहा फोरहेड में अगर हो रहा है तो ये हमारा डैंड्रफ के साथ एसोसिएटेड है, एक फंगल इन्फेक्शन होता है, उसके साथ एसोसिएटेड है। सेकेंडली, जो लोग रात को वो ऑयलिंग करके सोते हैं, सरसों तेल या मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं, चिक ऑयल कोई भी लगा के रात को सोते हैं, ये हमारे इंडिया में बहुत कॉमन हैबिट है, तो इससे भी फोरहेड में होते हैं। हाँ, क्योंकि वो क्लॉक कर देता होगा हाँ, पोर्स को। क्लॉक करते हैं, वो पोर्स को क्लॉक कर देते हैं, ऐसा होता अ, है। और रहा हमारा डॉक्टर मिड फेस शुरू, में, जी जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मिड फेस में ये तो कॉमन है, चीक नोज एरिया कॉमन है। लोग कभी कभी फ्रिक्शन होता है, बार बार हाथ रख के ऐसे रख रहे हैं, फ्रिक्शन हुआ या कोई भी केमिकल प्रोडक्ट लगा रहे हैं, उसके वजह से भी एक्नी एग्रेवेट होता है, तो उसका स्पेसिफिक एरिया। बिल्कुल। डॉक्टर, आपने इनिशियली कहा था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। एनीवेज, आई मीन थ्रू आउट आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितनी नींद ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी है कि नहीं, एक्सेट्रा, बहुत जरूरी है। एक्ने में कई बार कहते हैं कि दूध ज्यादा पीते होंगे या डाइटरी प्रोडक्ट्स लेते होंगे इसलिए एक्ने हो रहा है, चॉकलेट ज्यादा खा लिया एक्ने हो रहा है, मीठा ज्यादा खा लिया एक्ने हो रहा है, जंक फूड एक्ने। तो डाइटरी प्रिकॉशन कुछ आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जिनको बार बार एक्ने हो रहे हैं? डाइटरी प्रिकॉशन में दो है मेनली। एक जो आपने बोला मिल्क प्रोडक्ट या आइसक्रीम, इससे एसोसिएटेड है एक्नी, डायरेक्ट एसोसिएशन। और हर केस में नहीं है, कुछ कुछ केसेस में होता है ये। फिर सेकेंडली, हाई कैलोरी डाइट जो होता है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका ज्यादा होता है, लाइक चॉकलेट हुआ, शुगर हुआ, जो आपका खाने के बाद बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत ज्यादा कैलोरी है, सडनली वो हमारा इंसुलिन का लेवल को बढ़ाता है, तो उससे भी एक्नी एग्रेवेट होता है। तो इसलिए हम यूजुअली एडवाइस करते हैं डाइटरी में कि हाई कैलोरी डाइट ना लें, और जिनको मिल्क प्रोडक्ट से होता है तो उनको फिर हम मना करते हैं। और जितने अपने खाना में ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा ऐड कर सके, वो इम्पोर्टेंट होता है। बाकी जंक फूड और ये फास्ट फूड तो हमेशा से ही नो है। बिल्कुल। तो जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे दूर रखना है, अपने खाने में ग्रीन वेजीज, फ्रूट्स, इनका इंटेक ज्यादा करना है। और अगर एक्ने है तो ऑफ कोर्स डेयरी प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वही जो हम शुरू से कह रहे हैं, एक क्वालिफाइड डर्मैट के पास जाना। हम ये भी देखते हैं डॉक्टर साहब, कई सारे पार्लर्स हैं, सलून्स हैं जो क्लेम करते हैं कि वो भी केमिकल पील्स करते हैं या दूसरे प्रोसीजर्स करते हैं, माइक्रोनीडलिंग करते हैं, या फिर एक्ने है तो हम आपको एक ऐसा फेशियल देंगे कि आपका एक्ने ठीक हो जाएगा। नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन
फिर भी आम लोगों के, क्योंकि वो ज्यादा मतलब रोज या हर महीने पार्लर जा रही है महिलाएं, तो एक टच रहता है, सलून में भी लड़के भी जाते हैं, तो एक टच रहता है, और बार बार जब उनको लगता है कि अच्छा जब यहीं पे हो जाएगा तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि ये पार्लर या सलून या क्वैकरी बहुत आजकल हो रहे हैं, तो ऐसे में इनसे कितना खतरनाक हो सकता है इलाज करवाना एक्ने का? एक तरह से इलाज तो नहीं, मतलब प्रोसीजर्स जो करते हैं वो खतरनाक हो सकता है क्या? वो बेसिकली वो जानते नहीं है, वो तो कहीं से भी सीख के ऐसा करा रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये तो हम तो टोटली मना करते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम देखे हैं कॉम्प्लिकेट करके वो फिर भेजते हैं। करना कुछ है और लगाते कुछ और है। उसका बहुत सारा गाइडलाइन है, वो फॉलो नहीं करते। बस आने लोग आ रहे हैं, उन पे भरोसा है, लोग करा रहे हैं। और वो सस्ता में ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट भी प्रॉपर यूज नहीं करते। हमारे यहाँ पे भी हम जो लोकेशन में 4-5 लोग हैं, जो हमने देखा है कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, प्रॉपरली प्रोडक्ट भी नहीं लगा रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कॉम्प्लिकेशन होता है ना, वो बहुत लॉन्ग टर्म रहता है। बहुत सारे लोगों को पील करके बर्न किए हैं। माइक्रो नीडलिंग की जरूरत नहीं, जबरदस्ती माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, पीआरपी कर रहे हैं। ऐसा कहीं पे भी ब्लड लेना अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कि कहीं पे आप ब्लड ड्रॉ कर रहे हो, ब्लड के साथ उसका कोई प्रोडक्ट बन रहे हो। बट वो ऐसा करते हैं, वो सेप्सिस मेंटेन नहीं करते हैं, इन्फेक्शन होता है, वो ब्लड लेते हैं, कुछ भी हाथ से टच कर देंगे उसको, फिर उसी को इंजेक्ट करेंगे। वो प्रॉपरली सेप्टिक मेजर नहीं करते हैं। हमारे पास हाइजीन या जो प्रिंटेड प्रोटोकॉल्स है वो नहीं मानते। नहीं करते हैं। तो और उससे सोचने वाली इन्फेक्शन बात होता ये है। भी है, बिल्कुल हाँ, कि हम अगर किसी और ऑर्गन का की सर्जरी या उसमें किसी तरह की ट्रीटमेंट की उम्मीद करते हैं, तो हम उसके स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर हैं उनके पास ही जाते हैं। अगर चेस्ट पेन होगा तो हमें कार्डियक को दिखाएंगे, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। कोई और प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड है, तो नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएंगे या एटलीस्ट यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। लेकिन स्किन आई थिंक हम बहुत लाइटली लेते हैं, बल्कि वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो थोड़ा रिस्पेक्ट तो देना चाहिए। और ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि आप सही जगह जाए, और जितनी जल्दी जाएंगे आपका ट्रीटमेंट का लेंथ उतना कम होगा। अगर एक्ने हो ही रहे हैं, आप डर्मैट से मिल लेंगे, तो हो सकता है बहुत कुछ, जैसे डॉक्टर ने भी कहा कि हो सकता है कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन से, एक अच्छे स्किन केयर रूटीन से ही आपको इजाद मिल जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सही जगह जाए, सही वक्त पे जाए, और इस केस पे तो आपको एक डर्मैट के पास जाना चाहिए। दो और क्वेश्चंस हैं हमारे व्यूअर्स के, उनको मैं जल्दी जल्दी लेना चाहूंगी। बहुत ये क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों ने पूछा है। मीनल वर्मा का क्वेश्चन है, डज मेकअप वर्सन एक्ने? तो ये एक बहुत आम सवाल रहता है कि एक्ने है तो मेकअप करेंगे तो क्या एक्ने और ज्यादा बिगड़ेंगे, क्या करें? तो एक्नी प्रोन स्किन के लिए मेकअप तो थोड़ा, जो हेवी मेकअप लेते हैं वो तो हम मना करते हैं, क्योंकि उससे एग्रेवेट होता ही है। तो बहुत लाइट मेकअप ले, फिर अगर मेकअप करना है, अगर जरूरी है, तो फिर इमिडिएटली आके पहले मॉइस्चराइजर, एक लाइट मॉइस्चराइजर लगा के ले मेकअप। फिर लेने के बाद मेकअप रिमूवर से रिमूव भी करना है, वो इम्पोर्टेंट होता है। बाकी कुछ कुछ ऐसा मेकअप है वो तो एग्रेवेट करता ही है। एक आखिरी सवाल मैं ले लूंगी सोनिया का। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर एक्ने टू क्लियर अप? कितना वक्त लगता है एक्ने को ठीक होने में? ठीक होने में ये फिर डिपेंड करता है ग्रेड के हिसाब से। इनिशियली जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं वो कम होता है 3 हफ्ते के बाद, 3 से 4 हफ्ते के बाद। फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर ग्रेड ज़्यादा है, तो आप जो ओरल मेडिकेशन में हो, तो कम से कम 8 से 12 महीना चलता है मेडिकेशन। और अगर उसके बाद भी हम अगर देख के केसेस देख के लगाने के लिए देते सिर्फ टॉपिकल मेडिकेशन, जिससे वो मेंटेन करें। नहीं तो बहुत सारे केसेस में ब्रेकआउट भी होता है, बीच बीच में हो सकता है। और यूजुअली हमारा क्लिनिकली अगर प्रैक्टिस करते हैं, जो हम यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं, 5 to 6 मंथ ट्रीटमेंट देते हैं। इसी में ही बहुत सारे केसेस मेंटेन करते हैं, तो टेक्निकली और फिर से दोबारा होने का चांस कम है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त हो चला है, इस पूरे सेशन को हमें समेटना होगा, तो समेटते हुए चलते चलते कोई संदेश जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? मेन ये बोलेंगे कि इंडिया में जैसा चल रहा है कि हाँ एक्नी हो रहा है, ये एज एज से हो रहा है, आएगा जाएगा, उसको लाइटली नहीं लेना। ये एक डिजीज है, प्रॉपर ट्रीटमेंट इनिशियली कराइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सबके चेहरे में कुछ ना कुछ गड्ढे रह जाएंगे। फिर मैक्सिमम को एक्नी होता है ये, तो इसीलिए वो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है। फिर दूसरा है डाइटरी हैबिट अच्छा रखना है, और रेगुलर एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट है। स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस से भी एक्नी एग्रेवेट होता है।
तो स्लीप पैटर्न, एक्सरसाइज, और अगर एक्ने उसके बाद भी है तो प्रॉपरली एक क्वालिफाइड बिल्कुल, तो स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट को को दिखाइए। लड़की आपको नहीं नींद के दिखाना है, क्वालिफाइड डर्मेट को दिखाना है। वो इम्पोर्टेंट है, तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सत्यजीत साहू। बहुत अच्छी बातचीत आपसे हुई और बहुत कुछ हमें जानने और समझने को मिला। एंड आई एम श्योर अब हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हो, खासकर जिन्हें एक्ने हो रहे हैं इस वक्त भी, वो ध्यान रखेंगे इन बातों का एंड दे विल डू देयर बेस्ट कि उनकी स्किन जो है हेल्दी रहे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर सत्यजीत साहू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। And viewers, thank you for your active participation. Stay happy, stay healthy. हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए. Have a good day ahead. Goodbye.